Hello friends, a very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. I hope you all are doing good, you all are great, you all are safe and healthy. And we are going to talk about financial strategic management for December 2021 and June 2022 students. If you are going to give exam in December 21 and June 22, this video is for you. Because in this video we will be doing an introduction lecture for all the chapters of financial and strategic management. As you all know that I will be taking financial strategic management lectures by online and Google Drive and pen drive mode. You will be getting the latest recording online mode in my app UDIT DUA classes, and Google Drive and pen drive mode you can order from my website. So in this video for December 2021 students and June 2022 students, we will be doing the analysis of how the paper pattern is, how the chapters will be covered from my side, what will be my strategy to get above 60 marks in this paper, because this is really a very good and scoring paper. So we will be doing analysis from the past trend, which three papers have been happened from MCQ base from December 19 onwards, and we have been analyzing the things very seriously for this. So December 2021 students can take the lectures, June 22 students can take the lectures. You will be getting everything. What will be my coverage? I will be covering everything conceptually and practically. Now that is very important because some teachers don't teach things very much conceptually. I will be teaching financial management in very much detail, and I'll be taking a practical approach because practically you need to be very strong. Now students will say that we will pass the exam by theory, but that is not that much easy and not possible. So how the paper is coming, how much practical thing is important, very everything we will be discussing in this video. Conceptually clarity आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I'll be talking in English and Hindi both. If you understand any of the language, you can definitely able to understand it. Now practical approach, what do you mean by that? Because exam में practical MCQs बहुत difficult आते हैं, और practical approach का मतलब ये है कि concepts तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा. ICSI का study material तो we will be covering for sure, लेकिन we will be covering practical questions also. Now what do you mean by that? Practical questions which are big questions given in the study material, I'll be covering that. No matter, I know that they will not be coming in the exam, but they have a reason. That is why Institute has given that in the study material. And study material is having chapter number 10, in which you get extra practical questions and case studies. We will be discussing everything. Now why I'll be taking these things? Because if the student do this once, student will get the confidence and crack any of the MCQs based on the practical or conceptual approach. Are you with me? Yes or no? Yes. So we will be doing 2,500 plus MCQs. We will be giving solve. We will be solving in the lectures itself. We will be doing past year exam questions up to August 21 exam. August 21 exam तक जितने भी MCQs के questions आए हैं, I'll be doing that. Live doubt sessions I'll be taking on Google Meet or Zoom wherever possible. Practice MCQs on regular basis on Telegram channel. This is free for everybody. If you study from me or if you don't study from me, you can join my Telegram groups. We will be doing free MCQs, practice, mock test before exams. I'll be giving this in my app. I'll be giving in my app a free mock test, and my target is 60 above. Simply 60 above. This is my minimum target if you're studying from me. So I will be taking everything above 100 hours. I'll be taking, and you'll be getting latest recordings, latest lectures. We'll be covering everything by October mid, and August 21 का जो भी एग्जाम हुआ है वो वहां तक एग्जाम के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का आता है, MCQ बेस्ड पेपर है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स का आता है. आई गेट 1 mark plus for the correct answer and 0.25 negative marks for wrong answer. I have
negative marking also, right? So if I do a chapter wise weightage, now this weightage is on the basis of the past trend from December 19, December 20, August 21. 3 papers have been there on MCQ base. Now I have brought down what kind of chapter weightage is there. Now next December 21 or June 22, this might be similar or might not be similar because it is ICSI and you cannot predict anything. Now the first chapter is kind of a nature, significance and scope. It is an introductory chapter in which we do introduction kind of thing. We get 3-5 questions out of this. Cost of capital is very important chapter. We got 5 marks in the 5 questions in December 19, 9 in December 20 and 6. So 5 to 9 we are getting questions. Capital structure plus leverages. Now I will be teaching capital structure different chapter, leverages different chapter, but institute has migrated that chapter in one only. So this is also very important chapter 9, 7 and 11. This time 11. The dividend policy, in which I will be telling you about dividend, how the companies distribute dividends. So that is also a normal 4 to 7 marks questions come. Time value of money plus capital budgeting. I take these as 2 chapters. I'll be taking it separately, but institute has taken it one. And it is most important chapter because out of 60 you get 13 marks here, 13 marks here, you know, and 13 marks may you get practical questions also which are not easy to crack. And this is the working capital. This is also most important chapter because I got 14 marks in December 19, but this reduced to 8 marks and then reduced to 7 marks. Now this might go to 5 marks in next attempt or maybe going to 15 marks. So the point here is security analysis, portfolio management, 7 to 8 marks, project finance, less important chapter. So the point here is looking into this table is that everything is important. Small chapters are less important, like nature, significance and project finance, but big chapters like cost of capital, capital budgeting, working capital and portfolio security analysis, they all are most important chapter, and you get 80 to 90% paper from this chapters only. Now the point here is that FM is 60 marks, and how much practical is coming, how much theory is coming, because 1 mark, 1 question is coming. In December 2019, 25 questions were practical and 35 questions were theoretical, almost 60-40 ratio. Now December 20, because there was no exam in June 20 because of COVID, and 26 questions came theoretical and practical came a lot. Practically, it was a very strong paper, very difficult paper. Many practical questions were very much. And यहाँ पे August 21 में क्या हुआ, थ्योरी ज़्यादा आ गई है और प्रैक्टिकल 16 मार्क्स के आए हैं और थ्योरी 44 मार्क्स के आए हैं. तो this is just a bonus kind of thing which happened with majority of the students if they were not very much prepared with practical thing. थ्योरी भी इतनी आसान नहीं थी. जैसे कि मैं कहता हूँ, थ्योरी, ये क्वेश्चंस थ्योरी के नहीं होते हैं एफएम में. दीज आर कंसेप्चुअल. कंसेप्चुअल में आपके फॉर्मूलेज भी टेस्ट कर लिए जाएंगे या आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में, जो इस बार देखा गया है अगस्त के पेपर में, राइट. तो प्रैक्टिकली आपको स्ट्रांग होना है और कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है. दिस इज जस्ट बाय चांस की 16 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आए हैं. अब ये दिसंबर 21 में I am expecting minimum 30 questions because यहाँ पे 25 to 30 का ये ट्रेंड, 34 का ट्रेंड ये चल रहा है और ये चांस की बात है कि इस बार 16 आए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मेरे पूरी थ्योरी है. Now if I talk about chapter wise things, now financial management, these are the things, these are the order of the chapters in which I will be covering in your lectures. Firstly, I'll be doing nature, significance of scope of financial management, because financial management में you need to think as a financial manager. Financial manager का क्या main purpose है कि जो मेरे shareholders हैं उनका wealth maximization होना चाहिए. मेरा finance क्या होता है, art of managing the money. मेरे को पैसा कैसे मैनेज करना है वो मेरे को नेचर सिग्निफिकेंस में पता चलता है.
क्या मेरा फाइनेंस है, क्या मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर का फंक्शन है, क्या मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, क्या मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे फर्म के, रिस्क रिटर्न वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये बेसिक चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे जो फाइनेंसेस हैं, मेरे को अगर बिजनेस शुरू करना है, हम एक बिजनेस माइंड की तरह यहाँ पढ़ने वाले हैं। मैं कोई भी स्टार्टअप की बात करूँ, स्विगी है, जोमैटो है, जोमैटो का अभी आईपीओ आया है जो कितना गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। तो यहाँ पे अगर मैं बिजनेस में स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट मनी एंड मेरे को यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, एंड आई कैन गेट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक इक्विटी शेयर्स, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, लाइक डिबेंचर्स। अगर मैं इक्विटी से फाइनेंस लेता हूं तो आई विल बी इशूइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू माय इन्वेस्टर्स। मैं प्रेफरेंस शेयर्स देता हूं तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स देता हूं। डिबेंचर्स को मैं यहाँ पे लोन मानता हूं जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट देता हूं। तो मेरे क्या क्या सोर्सेज हैं अलग अलग। अगर मैं इक्विटी शेयर से फाइनेंसिंग कर रहा हूं तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता हूं, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ उसकी एक खर्चा है, उसका एक कैपिटल का खर्चा है, तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम निकालते हैं अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करता हूं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालते हैं और डेब्ट पे मेरा इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालते हैं जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं फाइनेंसेस कर रहा हूँ बिजनेस में, तो आई नीड टू कैलकुलेट दैट इन अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड मैनर, दैट वेदर आई शुड टेक द फाइनेंसेस फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स और फ्रॉम माय रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? जो मेरे बिजनेस में पहले के प्रॉफिट्स पड़े हैं। आर यू विद मी? यस। तो नेक्स्ट चैप्टर इज लीवरेजेस। लीवरेजेस और कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा स्टडी मटेरियल में एक ही चैप्टर है, लेकिन हम इसको अलग अलग करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में पहले कराऊंगा, उसके बाद लीवरेजेस करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं बात करता हूं कि मेरा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बने, कहाँ बने। वहां बनेगा जहां पे मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम है। तो मेरे कैसे डिटर्मिनेंट्स है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, कैसे मैं EBIT EPS का एनालिसिस का यूज कर सकता हूं, कैसे मैं रिस्क एंड लीवरेजेस का यूज कर सकता हूं, कैसे मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर की अलग अलग थ्योरीज है, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, तो उसको मैं कैसे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। वैल्यू ऑफ द फर्म को कैसे मैं निकाल सकता हूँ। जब मैं ये सीख लूंगा तो मैं लीवरेजेस पे आऊंगा। लीवरेजेस क्या है? मेरे टूल्स होते हैं टू मेजर द रिस्क। तो मेरा यहाँ पे हर चीज में रिस्क इन्वॉल्व है। सिर्फ बैंक में जब FD करते हैं उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं मेजर करने की बात करूंगा, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग भी रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल भी रिस्क हो सकता है। ऑपरेटिंग को मैं DOL से मेजर करता हूँ, फाइनेंसेस को DFL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो लीवरेजेस को हम यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी। पूरा चैप्टर ये कहता है कि डिटरमिनेंट्स एंड कंस्ट्रेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, और अलग अलग डिविडेंड के फॉर्म्स होते हैं, डिविडेंड की थ्योरीज होती हैं। कई पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिन्होंने माना कि डिविडेंड इररेलेवेंट है, कि कंपनी दे या ना दे, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेयर पे। और कई पॉलिसीज या कई थ्योरीज ऐसी हैं जिसने कहा कि फर्क पड़ेगा। वॉल्टम मॉडल है, मोदी गिलानी मॉडल है। तो डिविडेंड मेरा कब बढ़ता है? जब मेरा कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है, तो उसको देखना है कितना मुझे रिटेन करना है बिजनेस में। रिटेन का मतलब है बिजनेस में दोबारा से पैसा लगाना है एज अ रिटेन अर्निंग, या कितना मुझे शेयर होल्डर में को डिविडेंड बांट देना है। जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बढ़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी बटेगा, प्रेफरेंस को भी बटेगा। आर यू विद मी? यस। नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग। ये दोनों एक चैप्टर है स्टडी मटेरियल में, लेकिन हम बाइफरकेट करके चलेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वी विल सी दैट ₹1 is not equal to what ₹1 was yesterday, and it will be after 5 years or 2 years. सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मेरा पेट्रोल देख लीजिए आप। मेरा 2 साल पहले पेट्रोल ₹70 के आसपास मिलता था और आज वो ₹100 क्रॉस कर चुका है। तो दैट मीन्स if I have ₹100 note, I was buying more than 1 liter
बिफोर 1 ईयर और 2 ईयर्स, और आज मेरा वो मुश्किल से 1 लीटर भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मनी की वैल्यू होती है टाइम के हिसाब से, नेट प्रेजेंट वैल्यूज होती है, डिस्काउंटिंग हम कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, एन्युटी क्या है, सिंकिंग फंड क्या है, परपेचुटी क्या है, सारी चीजें यहाँ पे हम, कैलकुलेटर पे कैसे आपको यूज करना है, MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, सब आपको बताऊंगा। कैपिटल बजटिंग बहुत बहुत लेंथी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स का इवैल्यूएशन करते हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट तो कैसे करनी है, वहां पे करनी है जहां पे मेरा मैक्सिमम रिटर्न आए, उसको मुझे कैपिटल बजटिंग बताता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के हिसाब से, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज हैं, मेरा पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, अलग अलग थ्योरी से हमारे को पता चलता है कि हम कहाँ पैसा लगाएं ताकि मेरा सबसे ज्यादा फायदा हो सके। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करूं, वर्किंग कैपिटल्स को मैं कैसे मैनेज करूं, मैं ऑपरेटिंग साइकिल की यहाँ बात करूंगा, मैं कैश रिसीवेबल्स की बात करूंगा, मैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करूंगा, मैं बहुत अलग अलग, RBI ने अलग अलग नॉर्म्स दिए हैं, टंडन कमेटी की बात करूंगा। यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग साइकिल में ये दिखता है कि मैं जब कैश से मैं बिजनेस में स्टॉक खरीदता हूँ और उसका मैं वर्किंग प्रोग्रेस से मैं उसका मैन्युफैक्चर करके कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ, सेल में क्रेडिट पे करता हूँ, तो मेरे डेटर्स खड़े हो जाते हैं। तो मेरा जब कैश जाता है और वापस मेरे को बिजनेस में आता है, उसमें कितना टाइम लगता है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत डिटेल में करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं। इसमें मैं देखूंगा कि मेरा रिस्क कैसे मैं मेजर करूं, सिक्योरिटीज मेरे स्टॉक हैं, स्टॉक मार्केट की मैं बात करूंगा, बड़े बड़े चीजों की मैं बात करूंगा, मैं कैसे ट्रेंड से टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट में आपको दिखाऊंगा, पोर्टफोलियो को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अगर आप अपने फादर से पूछें कि उनके पास अगर 10 लाख हैं तो वो कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, थोड़ा सा पैसा वो गोल्ड में डालते हैं, थोड़ा सा वो फिक्स डिपॉजिट में, थोड़ा सा वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, थोड़ा सा वो इक्विटी में, थोड़ा सा वो म्यूचुअल फंड में। तो कैसे हम पोर्टफोलियो बनाएं ताकि हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो, रिस्क मिनिमम हो, तो उसको मेरे को मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी मुझे वो बताती है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मुझे वो बताता है, बहुत सी चीजें बताता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस में मैं नॉर्मल सी बात करूंगा, प्रोजेक्ट फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं वो मैं कई चीजें, मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो टॉपिक्स हैं उसमें कई चीजें मैं कैपिटल बजटिंग में ही कवर कर लूंगा, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हम अलग से करेंगे। तो दिस इज हाउ वी विल डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो मेरा 40 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर आप जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो कैसा माइंडसेट चाहिए कि आप एक स्ट्रैटेजिक मैनेजर हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप बढ़िया से बढ़िया बिजनेस स्कूल से MBA करके आए हैं, तो उस तरीके से आपका बिजनेस सेट होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। आपको मैं कॉर्पोरेट्स में कैसे बिजनेसेस, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, कैसे बिजनेसेस में क्या क्या होता है, क्यों येस बैंक एकदम से उसका शेयर फॉल हो गया, क्यों वोडाफोन और आइडिया ने एक साथ मर्ज किया था, क्यों आपका रिलायंस जियो के आने के बाद वोडाफोन आइडिया मर्ज हुआ, क्यों वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को मर्ज किया, क्यों जोमेटो ने IPO भी लेके आया। तो यहाँ पे हर चीज की एक स्ट्रैटेजी बिजनेस अपना रही है। तो उसके हिसाब से कोका कोला और पेप्सी कैसे एक दूसरे से राइवरी करते हैं, कैसे एक दूसरे से कंपटीशन होंडाई और मारुति सुजुकी करता है, तो कैसे जब आपका वैगनआर का एक नया मॉडल आता है, अपग्रेडेड मॉडल आता है, तो ग्रैंड i10 या नियोस का होंडाई निकाल देता है। तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजीज। कंपटीशन में कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं बिजनेसेस को। तो सबसे पहला चैप्टर है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अगर आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है तो दिस इज द सेम चैप्टर इन विच ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ से मेरा मेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू होता है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे 7 और 6 मार्क्स का लेटेस्ट एग्जाम्स में आया है। बिजनेस पॉलिसी और फॉर्मुलेशन हम कैसे करें, यहाँ पे देखो 12 मार्क्स का आया दिसंबर 19 में, फिर 5 और 6 मार्क्स का रह गया। तो दिस इज
where institute is unpredictable. Strategic analysis and planning 17 मार्क्स का आया और यहाँ पे 10 मार्क्स का रह गया. Strategic implementation control 5 से 9 मार्क्स का चला गया, वो बढ़ गया. Analyzing strategic edge 4, 5, 6 मार्क्स का आ रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजर हो आपको बिजनेस चलाना है, कॉर्पोरेट्स की बात करनी है, एक दूसरे से कंपनीज कैसे राइवरी कर रही है, टेलीकॉम सेक्टर में जियो के आने के बाद कैसे तहलका मच गया, कैसे सारे टैरिफ्स जो वोडाफोन के एयरटेल के थे सारे स्लैश कर दिए गए, कैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइवल होता है, कैसे मारुति और होंडाई एक दूसरे से compete कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ये बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह है. यहाँ से मेरा मेन चैप्टर है जिसपे मैं बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं. कंपनी सेक्रेटरी आप बन जाएंगे तो आपके क्या इंपॉर्टेंस है ये सब चीज़ों में, वो हम पढ़ेंगे. फैक्टर्स, मेरे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2020 और 21 में कोविड-19 है, क्योंकि कोविड-19 मैक्रो फैक्टर है और उसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस इफेक्ट हुए. आर यू विद मी? यस. तो ये मैक्रो फैक्टर है. माइक्रो फैक्टर अलग है. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कैसे मेरा जियो के आने के बाद वोडाफोन आइडिया का एकदम रेवेन्यू फॉल हुआ. और पॉटर्स का 5 फोर्स मॉडल जिसमें वो बताता है कि नए एंट्रेंस के आने से कैसे बिजनेस पे फर्क पड़ता है. मेरे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो मेरा बिजनेस में जो कस्टमर है सब्स्टिट्यूट्स पे स्विच कर जाता है. कैसे मैं कंपटीशन में सर्वाइव करूं, ये सब मेरे को बातें करनी है. कंपनीज और कॉर्पोरेट्स और जो मेरे ब्रांड्स हैं जो हम डेली यूज में देखते हैं उससे मेरे को केस स्टडीज के बेसिस पे मुझे ये पढ़ना है. बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द फंक्शनल स्ट्रैटेजी. सबसे पहले हम बिजनेस की पॉलिसी देखते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर मेरा इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेरा इवैल्यूएशन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर फॉर्मुलेशन है. अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पार्ट्स हैं, ये सब इन चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं. इसमें मेरे को क्या देखना है कि मेरा विजन क्या है और मिशन क्या है. विजन स्टेटमेंट मेरा क्या है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ. अमेजोन का विजन क्या है, गूगल का विजन क्या है, कैसे ये कंपनीज बड़ी बड़ी सर्वाइव कर रही हैं, बहुत बड़ा बिजनेस चला रही हैं. और आपका विजन क्या है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएं 2 साल या 3 साल के अंदर. और मिशन क्या है जहां आप अभी स्टैंड करते हैं और आप कैसे उस विजन को अचीव कर पाएं. तो मेरे यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, अलग अलग मेरी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, अलग अलग आपको बिजनेस का दिमाग रखना है. बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस चलाना कैसे है, वो सब यहाँ पे सीखते हैं. स्ट्रैटेजी का एनालिसिस एंड प्लानिंग मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है. स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट से आता है एस से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. मेरे कैसे ये सब मैनेज करने हैं, कैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ को मैं अपनी मैक्सिमाइज करूँ, क्योंकि हर की बिजनेस की हर की एक वीकनेस भी है, उसको मैं कम करूँ. अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करूँ और थ्रेट्स को कैसे मैं कंट्रोल करूँ. अलग अलग मेरे मैट्रिक्स दे रखे हैं. बीसीजी मैट्रिक्स जो मेरा बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने दिया, मेरा ये बताता है कि एक ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे मेरा एप्पल है, एप्पल मेरा आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है, मेरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप भी बनाता है और मेरी वॉच भी बनाता है जो मेरी स्मार्ट वॉच है. तो कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट मेरा स्टार में आता है, कैश काउ में आता है, ये अलग अलग उसने नाम दिए हैं. कैसे मेरे वो डॉग में आता है. तो हर प्रोडक्ट में मेरी मार्केट शेयर मैक्सिमम नहीं होता. जैसे सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी सबसे ज्यादा बिकता है, एप्पल का आईफोन ज्यादा बिकता है, तो वॉच कम बिकती है. तो ये ऐसे हम बिजनेसेस को एनालाइज करेंगे, ब्रांड्स का एग्जांपल लेके करेंगे जो आप रियल लाइफ में देखते हैं. स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, जो मेरा इश्यूज हैं, स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन है, अलग अलग तरीके से मैं लीडरशिप या कैसे मैं चेंज या कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैं वो देखूंगा और एनालाइज में करूंगा. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या, और मेरा यहाँ पे बेंचमार्किंग में मैं देखूंगा कि मैं कैसे बिजनेस जीरो से स्टार्ट दोबारा से री इंजीनियर कर सकता हूँ. तो ये भी मेरे बिजनेस के अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पार्ट है. कौन सी कंपनी ने ऐसा किया वो भी मैं आपको बताऊंगा. और अलग अलग कंपनीज, कोका कोला, पेप्सी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो
और यहाँ पे मारुति हुंडई टेलीकॉम में कैसे कैसी स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं वो हम रियल लाइफ में आपको दिखाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे. दैट इज हाउ आई विल प्रोसीड विद योर स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपको 2500 से ज़्यादा भी MCQs कराए जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे. एंड दिस इज हाउ आई विल बी प्रोसीडिंग. यू विल बी गेटिंग अमेंडेड एंड लेटेस्ट लेक्चर्स जिसमें आपको सब किया जाएगा. अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है और आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी मेरा कॉम्बो है. अगर आपको वो सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं. आई विल बी टेकिंग इन अ वेरी रीजनेबल एंड अफोर्डेबल कॉस्ट और आपको क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा. सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड and you are ready to practice. So my good wishes are always with you and you will be definitely above 60 in this paper and this above 60 will definitely CMA में भी above 60 आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं और बाकी दो सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट है. So that's all for today. Thank you very much for watching. I hope to see you in the next lecture. आप डेफिनेटली मेरे ऐप में एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए और गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव का मेरा लेक्चर्स मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड. गुड बाय. जय हिंद. गुड बाय.